Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since from 3 months actually we are taking coaching under the guidance of Muhammad Khaja sir. I am a regular student and I have been attending from 9th April onwards in the month of Ramzan. He has started and almost the syllabus point of view is almost completed, and he has given a very confident way of particularly area of questioning how comes in the competitive exam, particularly groups, group 4, SI constable, all these very wonderful strategy he has given. According to those steps, if you follow, definitely one must able to clear the prelims exam. And nearly 500 students are coming here on regular basis, and it's a very what you say, many of the other members also giving coaching, but the effective way what I have observed here is a very clear-cut concept, and the way of attempting the questions, particularly in all the polity, whether it's a history or it's a general knowledge or it's a current affairs, right? So it's a very competition is also very tough, but the way what he has explained in a very clear-cut manner, and we are happy to attend the course, and inshallah we will definitely able to crack the exam in future. And I'm very much thankful to Muhammad Khaja sir, the way he has show the dedication towards the coming from 7 a.m. sharp and giving the coaching 3 hours, and particularly in the old city it's a remarkable history that the students it's coming on even in the holy month Ramzan, they have reported 7 a.m. sharp, and they are giving some it's only the dedication what the Khaja sir has given, it's a motivation. So what we will be, and definitely if you follow, we will give the output. And अस्सलाम वालेकुम। खाजा सर हम लोगों को फ्री में कोचिंग दिए सो है, और अब आज बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे सो है आज यहाँ पे, और फ्री क्लासेस दिए सो है, बहुत अच्छा प्रोवाइड करे सो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे। जो लोग कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा पैसा रहने की वजह से, उन लोगों को सर अच्छा हेल्प करे, इसलिए थैंक यू। Good morning everyone, myself Adiba Mohyuddin. I am the student of Khaja sir. He is giving free coachings for all, group 1, group 4 and constable and SI. I am coming here from 3 months. It was from morning 7 to 10. Very nice coaching he is giving, and I am very much thankful to him for giving free coaching, and he is providing books as well. I want to say something for my sir. गॉड ने दी ज़िंदगी, मॉम डैड ने दिया प्यार, गॉड ने दी ज़िंदगी, मॉम डैड ने दिया प्यार, सीखने और पढ़ाने के लिए हम सब है आपके शुक्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रफ़ीक है। मैं जो है यहाँ पर 3 महीने से जो है क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। खाजा सर और गैलेक्सी ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है 3 महीने से फ्री कोचिंग दी जा रही है। जैसे कि अपने बच्चे जो है तेलुगु मीडियम नहीं समझते और इंग्लिश मीडियम नहीं समझते, तो अपने खाजा सर जो है अपनी जो हैदराबादी लैंग्वेज है, दक्कनी लैंग्वेज है, उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में भी आ रहा है, तकरीबन बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार अपने मुसलमान बच्चे भी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि तो खाजा सर ना मुसलमान देख रहे ना हिंदू देख रहे, सबको दे रहे हैं। लेकिन अपने ख़ास करके अपने लोगों के लिए जो है जो समझ में नहीं आता, जैसे कि बाहर कहीं इंस्टीट्यूट में गए तो तेलुगु मीडियम में देते कोचिंग, तो अपने बच्चे समझ नहीं सकते, इसलिए खाजा सर ने ख़ास करके और गैलेक्सी ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से जो है फ्री में जो है कोचिंग दी जा रही है। इंशाल्लाह बुक्स भी दिए जा रहे हैं, और जो है अभी तक छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। खाजा सर भी जो है हमारे लिए सुबह मॉर्निंग 7 बजे से 10 बजे तक, संडे को भी छुट्टी नहीं दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, पूरा टाइम देके हमारे को पढ़ाया है। इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पास होने की, और जैसे हमारी मेहनत और मशक्क़त। गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी जॉइंट कमेटी के इंचार्ज हैं, आप भी डैश पर तशरीफ लाएँ। आली जनाब खालिद साहब जो गैलेक्सी एकेडमी के इंचार्ज हैं, आप भी डैश पर तशरीफ लाएँ। और आली जनाब जो आपके हर दिल अजीज़ आपके जो फैकल्टीज हैं, जो खाजा सर की मेहनत और खाजा सर डैश पर तशरीफ लाएँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे को इस काम के लिए चुन लिया है, तो आप लोग की हम लोग खिदमत कर रहे हैं। मैं और खाजा सर जो आप
आपकी जो मेहनत है, और मैं जहाँ तक कोशिश ये समझूंगा कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशों पे पानी नहीं फेरेंगे और आप लोग गवर्नमेंट के सीट्स लेके आके बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कांस्टेबल या एसआई अगर आप बनेंगे तो आप लोग इंशाअल्लाह ताला हमारे से जरूर आके मिलेंगे कि सर आपकी कोचिंग्स में यहाँ पर हमारे कांस्टेबल्स हम बने हैं या एसआई बने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जी तोड़ मेहनत करेंगे एग्जाम तक और अपना नाम, अपने खानदान का नाम, अपने उस्ताद का नाम और अपने कंट्री का नाम रोशन करेंगे। तो अभी की कुछ देर में और थोड़े गेस्ट आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने जो टैलेंट आप यहाँ पे हासिल करें उसके बारे में भी थोड़ा आगाही करिए। तो मैं ही प्रोग्राम स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूँ। मैं ही इंशाअल्लाह ताला क़िरात कलाम पाक से स्टार्ट करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीक रब्बुक फतर्दा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। कमेटी के कन्वीनर है, मैं उनको दावत देता हूं कि आपसे मुखातिब फरमाएं। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने जिस हौसले के साथ, हिम्मत के साथ 3 महीने मेहनत करें और हमारे इस्लाम साहब और ख्वाजा साहब आपके लिए जो कोशिशें करें, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ गो होता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की ये मेहनत में भरपूर कामयाबी अता करे। खुदा उस खौफ की हालत नहीं बदलती, ना हो जिनको खुद अपने आप को बदलने का ख्याल। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के हालात में बिलखुसूस माइनॉरिटीज मुस्लिम के जो हालात हैं, ऐसे में आप जैसे नौजवान बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कामयाबी के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन कामयाबी उस सूरत में मिलती जो कोशिश आपने शुरू की उसको आखिर तक, अंजाम तक लेकर जाए। यहाँ तक 3 महीने तक जो आप लोगों का मैं रिकॉर्ड मालूम करा था, हमारे सब इससे बड़ी भी मुलाकात में बोले थे कि बच्चे कमिटमेंट है और भरपूर कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो मैं बोला अगर आप जैसा बोले और भी बहुत सारे कोचिंग करें, एमएस वाले करें, सियासत वाले करें, एमएम वाले करें, वहाँ पर बच्चे उनको रिस्पॉन्स नहीं दिए। और यहाँ पर इतना आप लोग कमिटमेंट तरीके से, भरपूर तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की कामयाबी कौम की कामयाबी है, आप लोगों की कामयाबी इस्लाम साहब की कामयाबी है, आप लोगों की कामयाबी ख्वाजा साहब की कामयाबी है। अगर एक बैच आपके पास से
भरपूर तरीके से अगर कामयाब होकर रिजल्ट लेकर आ रहा है तो इससे आने वाली नस्ल को बहुत बड़ा पैगाम देगा। आने वाली नस्ल इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करेगी। अगर हम यहाँ पर फेल होते तो इससे हमारे आने वाली नस्ल में नफ्सियाती कमजोरी पैदा होती। तो मैं आप लोगों से पूरी उम्मीद कर रहा हूँ, आप लोगों में जो अच्छा लड़का है उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आके इस कोचिंग के बारे में उन्हें क्या हासिल करे और उनको क्या फ़ायदा हो सकता बोले। कोई एक हिम्मत करके आइए। आओ यार, नौजवान बच्चे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ आओ उठो, नहीं तो मैं लेडीज़ को बुलावा दूँगा। आ जाओ आप लोग। पहली बात तो मैं शाम साहब का और आजा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से वल्लमा ये इनिशिएटिव लिए कि हमारी माइनॉरिटीज़ को पॉपुलेशन में देखें तो हमारा मेजॉरिटी हिस्सा है, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड ऑल वी आर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़। तो ये जो एजुकेशन का मेजॉरिटी हिस्सा गवर्नमेंट के हिस्से में भी मेजर होने के लिए जिस तरह से ये लोग इनिशिएटिव लिए उसी के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे जो एमिनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें वो बहुत ही अच्छे थे। और जिस तरह से 3 महीने की कोचिंग थी हमारे लिए वो कहीं ना कहीं हमें कामयाबी दिलाने के लिए कामयाबी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला जब हमें कामयाब हासिल करेंगे हम भी ख्वाजा सर और वसाम सर के हाथ ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा खातून है। ये कोचिंग जो है आप सबको पता है 9 अप्रैल से शुरू हुई थी और अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग लेट हो जाते थे लेकिन सर लेट नहीं होते थे। और ये जो कोचिंग थी इसमें हर स्टेप हर क्वेश्चन जो है सर बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करते थे। जैसा कि अभी बोला गया था कि हमारी जो है मेजॉरिटी जो है मतलब हमारी जो माइनॉरिटी की जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा नहीं है। तो हमको ये करना है कि हम अच्छे से अच्छी मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचना है और ये बताना है कि हम भी उस मेजॉरिटी में पहुंच सके, क्योंकि हम उस कौम में से हैं जो अगर मतलब हम अगर थोड़ा भी पढ़ लें तो हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। तो हम अपना तवक्कल अल्लाह पे रखें और बाकी अपने हिस्से की मेहनत कर लें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाल्लाह हमारा जो हुसामुद्दीन सर और जो ख्वाजा सर जो हमारे पीछे हम सब के पीछे जो मेहनत करें हमको उस मेहनत को कामयाब बनाना है। तो आज हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम जितनी कोशिश हम कर सकते हैं और जितनी मेहनत हम कर सकते हैं हम उतनी मेहनत करने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी तवक्कल जो है अल्लाह पर छोड़ देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज से एक जेंट से मैं सुनने की वजह ये थी कि आप लोगों के हौसले कितने देखना चाह रहा था। माशाल्लाह से बेहतरीन हौसले हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग 90% रिजल्ट लेंगे। यहाँ जितने बच्चे बैठे उसमें से 90% आएंगे। देखो कामयाबी 2 चीज़ पे होती है, एक आपकी नीयत, दूसरी आपकी मेहनत। इंजॉय करने के लिए टाइम पास करने के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं आपको, लेकिन वो जो लाइफ होती है ना, आज हमारी कौम के 80% लोग वही लाइफ जी रहे हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 1980 के बाद मुस्लिम कौम में तालीम की बहुत बड़ी एक तब्दीली, एक रिवोल्यूशन आया और आज जो रिवोल्यूशन है हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो आप 60% कामयाबी की उम्मीद रखना। 100% पूरी मेहनत करने के बाद में उम्मीद आप कहेगी 60% रखना कि मैं ये सब्जेक्ट में 100% लिखा तो मेरे को 60% तो मार्क्स आना चाहिए। अगर आप 60% लिख रहे तो फिर आप कहेगी फेल में आते। तो ये लोगों की जो मेहनत है इन लोगों ने बिल्कुल बगैर किसी नीयत के, बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शोहरत के आप लोगों के लिए ये खिदमत करी। तो इनकी खिदमत को आप लोगों का परवान चढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। देखो इस वक्त जो हम हालात से गुजर रहे हैं, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि हम क्या ही संगीन हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे हालात से मुकाबला सिर्फ हम तालीम के जरिए कर सकते हैं। और इस हमारे पास सरकारी मुलाजमत में
जिस वक्त हम आज़ाद नहीं हुए थे 1947 के बाद सरकारी मुलाजमत में हमारा तनासुब 54% था, मुस्लिम माइनॉरिटीज 54% थे, और आज ये 74 साल में हमारा तनासुब 0% फिक्स है। यानी कि सरकारी मुलाजमत में इस वक्त मुसलमान 1% भी नहीं है। उसमें कई वजूहत हैं, आप लोगों की लापरवाही नहीं है, कई सरकारी गेम्स है, कुछ लोगों की साजिशें हैं, उसमें हम लोग घिरे हुए रहे कई, लेकिन 80 के बाद जब हमारे बड़े लोग बाहर जाना शुरू किए, टोटल पैदा करें, उसके बाद में हम लोगों को तालीम के लिए वो लोग कोशिश करके आगे लेके आए। आज माशाल्लाह से 80% मुस्लिम नौजवान बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छा कंपटीशन में आ रहे हैं। ये हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं कंपटीशन में आ रही, अब हम क्या कि कामयाबी की तरफ खड़े हुए, सिर्फ हमको कामयाबी छीनना है, हासिल नहीं करना है, छीनना है हमारे को कामयाबी। और छीनने के लिए जो स्ट्रगल करना है बस सिर्फ आपको छोटा सा बाकी है, आप 99% पे आ गए, 1% जो है आखिरी सीढ़ी आप लोगों को चढ़ना है। इसके लिए आप क्या कि ज़हनी तौर पर तैयार रखना कि अब हमारे को दूसरा कोई काम नहीं है, कोई दोस्ती नहीं, कोई रात में फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक 40 दिन आप अपने नहीं समझ के ये मेहनत करिए। ये अगर आप रिजल्ट ला रहे तो ये रिजल्ट आपका आने वाली नस्ल को बहुत बड़ा हिम्मत हौसला पैदा करने वाला है। आप लोगों को यहाँ तक ये तालीम का जो रुझान था आपका यहाँ तक तो लाइए, आगे मैं समझता हूँ कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, यहाँ से आप लोगों को सपोर्ट अपने आप को सपोर्ट करना है आप लोगों को। मैं एक 3 महीने पहले हुकूमत से मुतालबा किया कि माइनॉरिटीज़ को आप 12% रिजर्वेशन देते हुए थे, गवर्नमेंट जो है KCR गवर्नमेंट, माइनॉरिटीज़ को हम 12% रिजर्वेशन दिए, तो वो नहीं दे सके वो। तो मैं पटुल नुमाइंदगी करूँ KCR साहब को कि ये जो आप गवर्नमेंट जॉब का 80,000 अनाउंस करे, उसमें कम से कम 10% हमको मार्क्स रियायत दो बच्चों को हमारे, मैं रिजर्वेशन नहीं दे सके, मार्क्स रियायत दिए तो हमारे बच्चे कहीं ज़्यादा उसमें कामयाब हो सकते बोलते। तो फिर उसके ऊपर डिस्कस कर रहा, अभी तो वो लोग बात कर रहे हैं 10 करोड़ ने कम से कम अगर 5% पे अगर वो लोग हमको रियायत दे रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि 80,000 में कम से कम हमारे बच्चे एक 10% कामयाब हों, यानी कि कम से कम 8 से 10,000 हमारे बच्चों को जॉब मिलना। तो ये जॉब वो हम कानूनी तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश आपको करना है। आगे भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की मुश्किल हो रही, आप हिसाब साहब से अपने कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी आपको कहीं अगर एग्ज़ाम लिखते वक्त कहीं पर कोई आपके साथ ज़्यादती हो रही, कहीं नाइंसाफ़ी हो रही, क्या एग्ज़ाम लिखने के बाद में रिजल्ट में आपको कॉन्फिडेंस होने के बाद में भी अगर आपको कहेंगे आपके मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे किसी भी मामले में आप हिसाब सबसे वो कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम उनको हुकूमत में नुमाइंदगी करेंगे, इंस्टीट्यूट बजाएंगे, आप लोगों को मदद करेंगे। लेकिन उसी लोगों की मदद करते जो स्ट्रगल करते और कामयाबी हासिल करना चाहते। आप आगे बढ़िए, आपके बच्चे किस्मत देने वाले, आपको मदद करने वाले बहुत आ जाते हैं। आप अगर कमज़ोर होंगे, एक या पता कमज़ोर होने की जरूरत नहीं है। आज आप ये एग्जाम लिख रहे हैं, उसमें नाकाम भी हो रहे हैं, तो आपको एक पता फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में पावर है, स्ट्रगल करने का जज्बा है। आप अपने आप को पूरों को अपने मुट्ठी में खींचने की सहायता कीजिए, आप किसी के माथे होने की कोशिश मत कीजिए। ये एग्जाम में फॉर्मेलिटी आपकी आए लिख लीजिए, आप देखिए कामयाबी हो, ठीक है, नहीं हो रहा तो और 50 रास्ते उसमें आपको हासिल करने के स्ट्रगल करते रहिए। जो कम स्ट्रगल करती है वही कामयाब होती। तो मैं बहुत बहुत इनके हमारे इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी हिम्मत करी, कोशिश करी आप लोगों के लिए। अल्लाह हर मुसलमान को जो साहिब इस्तेदाद है उनसे ये काम ले, क्योंकि ये काम करना चाहिए खिदमत है कौम की। मैं इस्लाम साहब को और ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सैयद तनवीर साहब माइनॉरिटी जॉइंट कमीशंस के आप एक कन्वीनियर भी हैं, आपको दावत देता हूँ कि आपको मुखातिब फरमाएं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हिसामुद्दीन साहब और ख्वाजा साहब से इस बेड़ा उठाने का काम लिया और बहुत बड़े मुश्किल यानी जो एक काम था उसको आसानी से 3 महीने का जो है कोचिंग, फ्री कोचिंग के ज़रिए से आप लोगों को जो है ये मुस्तफ़ीद हुए हैं। और मैं हमारे मुग़ल फंक्शन हॉल के ओनर का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो साहब की भी जो बहुत बड़ी खिदमत है
कि उन्होंने भी इस खिदमत में अपना हिस्सा बराबर अदा किया। अल्लाह ताला इन तमाम तीनों हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और इनको इसी तरह से कौम की खिदमत करने की भी जो है आगे भी खिदमत करने का जो है एक इनसे काम ले अल्लाह ताला से, वो भी मेरी दुआ है। बच्चों, अभी आपने सुना कि भाई कामयाबी दो चीज़ों से होती है, बिल्कुल सही है। हर काम अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि हर काम इंसान का उसकी नीयत पे दारोमदार होता है। आप अगर खैरात कर रहे हैं तो भाई अगर किसी को दिखा के खैरात कर रहे हैं तो वो खैरात कबूल नहीं होती, उसका सवाब नहीं मिलता। और अगर खिदमत अगर कर रहे हैं तो खामोश खिदमत जैसे हशाम साहब और ख्वाजा साहब कर रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा सिला है, ये सवाब जारिया है। अब ये काम आप नौजवान बच्चे लड़के लड़कियों का है कि इसको हम कैसा अचीव करें गोल। भाई आपको एक रास्ता दिखा दिया गया, आपको ये भी बता दिया गया है कि किस स्पीड से आपको जाना है और आपको ये भी बता दिया गया है कि भाई इसको कैसा मसले का है टारगेट कैसा अचीव करना। तो टारगेट या गोल अचीव करना अब आपका काम है। जैसे अभी ख्वाजा साहब बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि अभी भी 45 दिन बाकी है। तो ये 45 दिन आपके लिए बहुत बहुत कीमती और बहुत कारगर और मुफीद है। अगर इस 45 दिन में आप अगर एक दिन भी खराब करते हैं या वेस्ट कर रहे हैं, आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें बाद में पछतावा। अब इसमें ज़रूर है कि भैया बकरीद आ रही है इतवार को 10 तारीख को, आप बोलेंगे साहब ये इसके दिन भी पढ़ना क्या, दूसरे दिन भी कुर्बानी, तीसरे दिन भी कुर्बानी, खूब जो है जरा नारी कुलचे पाए ये वो कलेजी रोटी सब खा लिया, अब ऐसा पढ़ाई होती क्या? भाई ज़रूर खाइए लेकिन लिमिट। आप इसका सही देखिए, कुर्बानी अपनी जगह है, आप नमाज़ें अदा कर दिए हैं, वाजिब नमाज अदा करते हैं, ईद की हो गई, लेकिन उस दिन भी आप जो है कम से कम उसमें 5-6 घंटे अपने निकाल के उसमें जो है अपने जो है इसको आप जो है रिविजन कीजिए। देखिए आप तैयार तो हो गए हैं लेकिन आखिरी वक्त का रिविजन बहुत अहम होता है। क्योंकि मैं भी एक जो है शहर के एक जाने माने इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है वाबस्ता था और मैं हाल ही में रिटायर हुआ। मैं भी एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाता था। तो मैं अपना एक तजुर्बा आपके सामने ये रख रहा था कि आखिरी वक्त का रिवीजन बहुत 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 काम का रहता है। अब इसमें दो चीज़ें होती है कि जब आप रिवीजन स्टार्ट करें तो आपको एक बुकलेट भी दी जा रही है और आपको नोट्स भी होंगे क्लास में जो आप जो बनाते हो बगैर थे, डेली जो नोट्स आप लिखते थे, आप क्लास वर्क होमवर्क वगैरह। अगर इसमें किसी किस्म का कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप बिला झिझक के ख्वाजा साहब को फोन करके, साहब 1 मिनट में आपसे जो है कुछ बोलना चाह रहा था, ये है फलान को पूछ देना, या कोई आपके घर में बड़े भाई बहन वगैरह या कोई उस्ताद है उनसे आप मदद ले लेके उसको क्लियर कर लेना। अगर आप सही वक्त अभी जब 45 दिन का सही इस्तेमाल अगर आप करते हैं रिवीजन में और उसको जो है परफेक्शन के लिए, तो फिर आपकी जो है कैरियर का जो है आगाज यहीं से होता है, आपका फ्यूचर बन जाता है। क्योंकि आपका टारगेट है भाई कि भाई मैं एसआई बनना, आपका टारगेट है कि भाई मैं एक कांस्टेबल बनना। और एक चीज़ आप ये ध्यान में रख लीजिए कि कांस्टेबल का कोई छोटा पोस्ट नहीं है। अरे भाई कांस्टेबल का जान करें तो लोग क्या बोलेंगे, हमारे ऊपर हेड कांस्टेबल रहता, सवार एसआई रहता, सर्कल रहता, एसीपी रहता, डीसीपी रहता। देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, कोई पोस्ट दुनिया में छोटा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में अगर जो है आपकी इत्तला के लिए, हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन जो होता है, SC ST का रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन होता है, एक अटेंडर के पोस्ट के लिए आप हैरत करेंगे, बीटेक, एमटेक, BR, MSc, BSc, समझे आप, इस किस्म के जो है कैंडिडेट अप्लाई किए। और गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाके देखिए, एज ए अटेंडर कौन काम कर रहा है, MCOM वाला, और कौन काम कर रहे हैं, बीटेक वाला। तो अगर हम उससे पूछे कि भाई आप ये क्यों काम कर रहे हैं, तो उसका एक ही जवाब मिलता है, देखो साहब मैं अटेंडर हमेशा ज़िंदगी में रहने वाला नहीं। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते,
प्रमोशन मिलता मेरे को तो मैं जो है वो एग्ज़ाम लिखूंगा, 5 साल के बाद जो है मैं अटेंडर से जाके LDC बन जाऊंगा, लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर मैं 5 साल के बाद UDC बन जाऊंगा, अपर डिविजनल क्लर्क, तो उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO बन जाऊंगा या सुपरिटेंडेंट बनूंगा। जब तक उन्हें रिटायर होता उन्हें भी एक ऑफिसर बन जाता। तो कोई कुछ छोटा नहीं है। तो कांस्टेबल में भी क्या है, अगर कांस्टेबल आप देखिए अक्सर पुलिस स्टेशन में जाके कि एक कांस्टेबल रहते क्वालिफाइड रहते हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह रहता, काबिल रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप, सर्कल जो है बुला के उनसे जो है स्टेशन राइटर का काम लेते हैं। स्टेशन राइटर होता है तो उनको बड़ी इज्जत से बुला के बोलते, अगर फर्ज कीजिए बोला है क्या नाम आपका, मसूद साहब आइए ना, बैठ के कंप्यूटर पर काम करिए बोला है, तो उनको यूनिफॉर्म भी नहीं रहता और उनको जो है इज्जत से बुलाया जाता। क्यों कि वो कांस्टेबल नहीं है, अब वो स्टेशन राइटर बन गया वहाँ। तो इस तरह से एक जो है, और एक कांस्टेबल को क्या करते हैं, कोर्ट की ड्यूटी रहती, उनको बोलते भाई आप केसेस लेके कोर्ट को जाइए, तो फला है मंत्री, तो लोग सिविल ड्रेस में ही रहते, ड्रेस की भी जरूरत नहीं रहती। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई हमारे जहन में एक बात आती, अरे कांस्टेबल, अरे अटेंडर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा, जब आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट पिछले 10 साल पहले की बात है, हम लोग वहाँ जाते थे सेक्रेटरी वगैरह से मिलने के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन वगैरह, तो एक जो है डिपार्टमेंट में हम गए तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, एक गैर मुस्लिम साहब फला जैसे कन्हैया लाल IAS, तो बाहर जो है उनके दरवाजे पे जो है एक टोपी लगा लेके उनकी पेशी में रहता, मेन जो अपनी रहता अटेंडर, एक बड़े मियाँ, हम जो है वहाँ रिसेप्शन में बैठ गए, वहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी है, फला है, स्टाफ रहता पूरा, तो उनको जाके बोले अरे क्या भाई देर हो गई आप जरा जाओ ना, तो नहीं साहब मैं आपका जो है विजिट कार्ड दे दिया हूँ, साहब को मैं दीजिए बुलाइए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, हम जाके जरा गर्म हो गए उनके ऊपर, पूछा अरे आप दिए नहीं दिए बना है, नहीं साहब मैं दे दिया। अब वहाँ पर जो थे प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो भी जो है ऑफिसर रहते हैं, सेक्शन ऑफिसर वाला, उनसे जाके पूछे क्या, बोले साहब जो आप अटेंडर पे गर्म हो रहे हैं, जो गुस्से में आ रहे हैं, वो आपको नहीं मालूम क्या, वो अटेंडर है, नहीं अंदर जो IAS ऑफिसर है वो इसका बेटा है, बाप जो है अटेंडर है और बेटा IAS ऑफिसर है अंदर। नहीं तो बोला ऐसा कैसा, तो हाँ बेटा भी बोला बाबा मैं आपका ट्रांसफर दूसरी जगह करा देता हूँ, नहीं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं फखर से कह रहा हूँ कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर है। क्या तो बाप जो है अटेंडर है, अब एक बेटा IAS ऑफिसर बना उसी डिपार्टमेंट में और वही सेक्शन में है और बाहर वो बैठे हुए हैं, तो बोले मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, समझा। तो ये आपके लिए अपने लिए एक मिसाल है बाबा कि कहीं कोई पोस्ट छोटा नहीं होता। तो कांस्टेबल से अगर आप जो है उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते और अचीवमेंट होता और आपका जो है परफॉर्मेंस रहता, उससे आपको क्या करते, आपको जो है प्रमोट करके जल्दी से हेड कांस्टेबल बना देते, 3 पट्टी आ जाती है आपको, थोड़ा एलिवेट हो गए, फिर आपको जो है सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं आप। तो कांस्टेबल से देखिए हाल ही में एक वीडियो आया था दिल्ली का, उसमें था एक जो है ग्रेजुएट नौजवान, मुसलमान नौजवान, उन्होंने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन कर लिए, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट थे उन्होंने MCOM। तो उसके बाद उनको शौक था पढ़ने का, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते गए, 1 साल लिखे IAS का, नहीं पास हुए, दूसरी साल लिखे नहीं पास हुआ, तीसरे साल लिखे नहीं पास हुए, चौथे साल जो है IPS में वो जो है ना सेलेक्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिए, करके जो है एज ए असिस्टेंट कमिश्नर जहाँ काम करते थे वहीं पर गए, क्या पे एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो जिस जिन्हें जो है जहाँ जिस डिवीजन में लोग काम करते थे, तो इनके नीचे जो है जो दूसरा जो असिस्टेंट कमिश्नर है, सर्कल है, ये देसाई है, सब इनके अंदर में आए। जहाँ इन्हों सलूट मारते थे अब वो लोग इनको सलूट मारते थे। तो आपको बताने का मकसद ये है बाबा कि आप जॉब करते हुए भी अपना कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अरे हम कांस्टेबल जल्दी ज्वाइन कर लिए, जिंदगी भर कांस्टेबल रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर शौक है, आप में डेडिकेशन है, आप में हौसला है, आप चाहते हैं अपना जो है अचीव करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, एक गोल अपना फिक्स कर लेना कि भाई मुझे जॉब करते हुए भी मेरे को तरक्की करना है।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उन्हीं की मदद करता तो लोग मेहनत करते हैं, बगैर मेहनत के तो कोई फल नहीं मिलता। और फिर दूसरी चीज़ काबिलियत तो है ही है भाई। तो अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, अब जो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं एसआई का और कांस्टेबल के, कि इन तमाम को आपको जो है अच्छी कामयाबी अता करें और एक अच्छा सा जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब मिला है। अभी जैसे सनाउल्लाह खान साहब जैसा बता रहे थे कि भाई ग्रेस मार्क का तो है, तो ग्रेस मार्क्स किए गए बाद से हम लोग भी जैसे सनाउल्लाह खान साहब के साथ गए, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किए, होम मिनिस्टर के पास भी गए, उनको भी दिए रिप्रेजेंटेशन, उनको भी समझाए, तो कंसिडरेशन है गवर्नमेंट का कि इसमें होता ये है कि फर्ज कीजिए आप अगर 200 में से अगर किसी कैंडिडेट को जो है 60 मार्क्स मिलते हैं तो ये ग्रेस मार्क गवर्नमेंट की तरफ से 10 ऐड हो जाते हैं, तो वो 70 हो जाते हैं, 70 होते हैं। मगर इस पर डिपेंड मत रहिए, आप अपना जो टारगेट है वो बराबर आप रखिए ज़रूर। तो इंशाल्लाह अगर जो है जो देखिए अल्लाह ताला की तरफ से जो मदद आती है, गैबी मदद, तो अलग चीज़ है, तो कभी भी कैसा भी आ सकती है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम उसको जो है मेहनत करते हुए इसको अचीव करें। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर एक मरतबा जो है हमारे हिसामुद्दीन साहब, ख्वाजा साहब और जो है हमारे फंक्शन हॉल के जो ओनर है इब्राहिम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम की जाने से भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी और मिलत की जाने से भी कि आपने इस सारे खैर में बहुत बड़ा काम किया है साहब। इतनी कि आपकी हम तारीफ करें या जितनी आपकी हम मतलब सलाहें कम है, इसलिए कि इस ज़माने में सोशल सर्विस करने वाले बहुत कम लोग हैं। अल्लाह ताला ने दौलत कई लोगों को दिया है और इख्तियार भी दिया है, पावर, कि भाई ये कोई एमएलए है पावर में है, कोई एमपी है पावर में है, कोई ऑफिसर है पावर में है, कोई जो है कलेक्टर है पावर में है, आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर कौम में है मुसलमान, मगर वो लोग कौम के लिए खिदमत नहीं कर रहे, आगे नहीं आ रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला इसके तमाम जगह जो है खिदमत को कबूल फरमाए और इसके साथ जो है आप तमाम का जो है तो जो है हौसला देते हुए रुखसत देता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह ये वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ में आएंगे, आपके फ्यूचर्स में काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं अब गैलेक्सी के एकेडमिक के खालिद सर से गुजारिश करूँगा कि 2-2 मिनट बोले, क्योंकि सबको इम्पोर्टेंस है काम और बच्चों को भी जाना है। सिर्फ 2-2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, तो उसमें मैं खालिद सर से गुजारिश करता हूँ, गैलेक्सी कॉलेज के एकेडमिक के इंचार्ज हैं, आपको मुखातिब फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुन नास मन यंफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। ये काम अल्लाह ताला ने हुसैन सर से, ख्वाजा सर से, इब्राहिम सर से ले लिया कि उन्होंने आपको ये मौका फराहम किया। मिल्लत का दर्द रखने वाले ही ये काम कर सकते हैं। अब देखिए एक रूप दूसरा भी है बात का। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन लम यशकुरन्नास लम यशकुरल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं हुआ वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो नहीं सकता। तो इस मौके का शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा आपके पास यही है कि आप इसका बेहतर इस्तेमाल करें। इससे जो नतीजा मतलूब है वो आप निकाल के बताएं, ओके। और हालात का रोना रोने से कुछ नहीं हो रहा होता कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा इखाब एक परिंदे को बोलते हैं, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला कौमों पे मुसीबतें डालता ही इसलिए कि है उन्हें निखारे, उन्हें संवारे, उनके आखिरत में छूट हो जाए दुनिया की मुसीबतों के नतीजे में, ओके। तदबीर के दर्रा होने से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। तो हमारा काम कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ है। His Excellency, respected dignitaries on dais, and warm welcome to all of you. Success of a human being, 4 important concepts are there: sincerity, dedicatedness, hard work, and last one is commitment. These are the 4 important factors which are going to give the support to each and every human being
in any field, definitely we are going to reach about our goal, targets, and we are going to get it excellent, bright future of any human being on earth. In this connection, let me give one statement which was given by Mr. Swami Vivekananda. Arise, away, stop not till the goal is reached. First of all, we are going to fix our goal. When we are going to fix the goal, then automatically we are going for pre-plan. How we are going to reach about our goal, destiny, arise, awake regarding our goal. What are the important factors to attain and reach the goal of a human being? Arise, awake, stop not till the goal is reached. We have to fight for, we are going to attain the goal. So, you are all well trained for 3 months. I wish you all the best. God bless you. Definitely you are going to get a success from your goal. Once again, all the best. God bless you, my dear friends, brothers and sisters. Thank you very much for giving a good opportunity to me. Give a few words regarding this closing ceremony of training of constables. Thank you, sir. Thank you very much. Have a nice day. मैं आली जनाब खदीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मुखातिब फरमाएं जो इस ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका भी बहुत बड़ा ताउन था। हम लोगों को इंकरेज करें, उसाम साहब ऐसा करिए हो बोल के खदीर सर और ख्वाजा सर हमको इंकरेज करने से हम लोग ये स्टेप उठाए और ये अल्लाह ताला एक पौधा लगाए थे और ये एक झाड़ बन के इंशाल्लाह ताला ये फल देने वाला दरख्त बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं खदीर सर से गुजारिश करूँगा सर आप मुखातिब फरमाएं। Dignitaries and dais and dear students, I think I'll just take a few minutes because everybody has spoken. I'd like to give 2 examples. You are comfortable in English या हिंदी में चलेगा? चलेगा. No problem. I think better I speak in हिंदी और उर्दू. तो 2 आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं. वो ये है कि एक डेडिकेशन कैसा होता है और एक मोटिवेशन कैसा होता है, ठीक है? और दोनों लाइव एग्जाम्पल्स हैं. नाउ यू कैन वेरीफाई इट एंड दे आर एग्जिस्टिंग. तो पहले तो मिसाल ये है कि आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र. आई एम नेटिव ऑफ महाराष्ट्र. आई हैड बीन ऑल इंडिया सर्विस में काम किया हमने. आई वाज रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर. सो वन एग्जांपल इज फ्रॉम महाराष्ट्र. एक अंसार नाम का लड़का था जो ऑटो ड्राइवर का बेटा था. आज से मुश्किल से शायद ये 2 या 3 साल पुरानी बात है. उसने IAS बेहतरीन नंबर से रैंक से निकाला. वो महज इसलिए ऑटो ड्राइवर का बेटा होने की वजह से नहीं बल्कि डेडिकेशन की वजह से. जैसे अभी एक साहब ने एक आपके सामने पेश किया एग्जांपल कि एक कांस्टेबल बाहर पहरा दे रहा था और अंदर IAS ऑफिसर बैठा था, ठीक है ना? तो ठीक उसी तरह एक ऑटो ड्राइवर का बेटा IAS ऑफिसर बना. कैसे बना? बिकॉज ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स. आप लोग जो काम कर रहे हैं तो इसमें हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है. माय रिक्वेस्ट इज दैट यू शुड बी डेडिकेटेड. 3 months ट्रेनिंग इज नॉट ए स्मॉल ट्रेनिंग. फैंटास्टिक ट्रेनिंग. ख्वाजा वाइज गिवन, आई नो हिम पर्सनली. बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके गाइड हैं. तो ये आप डेडिकेशन, आप जो बाकी का टाइम आपको एग्जाम तक मिल रहा है उसमें यू हैव ए डेडिकेशन. दैट इज द की वर्ड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. नंबर 2 जो है तो मोटिवेशन. अब एक मोटिवेशन का एग्जांपल ऐसे देते हैं कि वो अनबिलीवेबल है. यू कैनॉट जस्ट इमेजिन. एक कांस्टेबल था, शायद ये तमिलनाडु की एग्जांपल है, ये तमिलनाडु का है. एक कांस्टेबल हमेशा जो है तो ड्यूटी पे जाता था तो उसकी बीवी उसको टिफिन बनाकर दे दिया करती थी. वो गांव की अनाड़ी औरत थी जो ABCD या जो वो लोग अल्फाबेट तक नहीं जानती थी, ठीक है? एक दिन ये हो गया कि वो खाना बनाने के टिफिन वाले की देर हो गई और वो कांस्टेबल
कांस्टेबल चला गया ड्यूटी पे, एक्सरसाइज वो अपने काम पर चला गया। अब इसको बड़ा ख़राब लगा कि भाई मैं आज खाना नहीं दे सकी, मेरा शौहर भूखा रह जाएगा। वो तो चला गया, उसने जल्दी से टिफिन बनाई किसी तरह और वहाँ उसके ऑफिस पहुँची। तो वहाँ जाके देख रही है कि सब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो है तो काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकता है परेड चल रही होगी, और देखा कि एक नौजवान शख्स है, उसको जब सब लोग सलाम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, सो शी वाज सरप्राइज, व्हाट इज दिस, कि मेरा आदमी तो बड़ा आदमी है, उम्र वाला है, और एक छोटे आदमी को, एक नौजवान बच्चों को सब लोग नमस्ते कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। देन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ड्यूटी उसने अपने शोहर से पूछा कि ये क्या बात है। तो वो आदमी ने बताया कि वो आदमी जो है तो IPS ऑफिसर है, इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है। ये ऐसे ही नौजवान होते हैं और ये पूरे अथॉरिटी के होते हैं। हम लोग जो है तो छोटी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन इनकी बात सुनना पड़ता है, कहना सुनना पड़ता है। तो बोले वो क्या बात है, कैसे होता है। उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। उसने बोले कि ठीक है मैं IPS ऑफिसर बनूंगी। नाउ यू कैन इमेजिन, दिस इज मोटिवेशन, दिस इज गोल सेटिंग, कि भाई वो अनाड़ी अनपढ़ औरत बोलेगी मैं IPS ऑफिसर बनूंगी। अरे उसने बोला कि ये बच्चों का खेल नहीं है। आप यकीन मानिए ये हिस्ट्री है। उसने पढ़ना लिखना उस एज में शुरू किया, जो भी उसकी 20-25 साल की उम्र होंगी, पढ़ना लिखना शुरू किया। उसने प्राइवेट से मैट्रिक निकाला, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद कॉम्पिटिशन में बैठी और वो एक दिन IPS ऑफिसर बनी। नाउ दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज ए हिस्ट्री। अंसार की भी हिस्ट्री है, ये भी हिस्ट्री है। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू शुड हैव ए डेडिकेशन, यू शुड हैव ए मोटिवेशन, कि आपको ये मुकाम पे पहुंचना है। ये आपका जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगा, जब तक आपकी दूसरे तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। अब ये बात हो गई, आपको याद रखने की। अब दूसरी बात रियल फैक्ट पर आप आइए कि आप लोग जो हजरात लेडीज़ और बॉयज़, जो गर्ल्स बॉयज़ जो आप लोग तैयार कर रहे हैं, ये मे बी 150-200 है यहाँ पे जो बैठे हैं। ये नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी विल मेक इट आउट। पॉसिबल है ये, बोलिए आप 100% पॉसिबल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल उसका जवाब है कि नॉट पॉसिबल है। इसमें आप में से चंद लोगों को सिलेक्शन होगा, मिलेंगे, लेकिन ये हरगिज़ उसका माना नहीं है कि यू आर ए फेल्यूर। आप कभी उसमें नाउम्मीद नहीं होना है, आपको अपनी उम्मीद बरकरार रखना है। ये जो ट्रेनिंग हुई है ये बेहतरीन ट्रेनिंग है, ये हर जगह काम आती है। आप समझ रहे हैं ना कि आपको जो ट्रेनिंग दी गई इसको कई जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ये नॉलेज को, और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मौका मिलेगा। नाउ वन मोर थिंग, ये तो सेकंड आंसर हो गया। थर्ड थिंग ये है कि आप यही करना बोल के कोई ज़रूरी है क्या? नॉट नेसेसरी। आप पुलिस कांस्टेबल ही बनना है या सब इंस्पेक्टर PSI बनना है, इंस्पेक्टर का जरूरी नहीं है। आपको अगर ये मौका नहीं भी मिलता है तो यू शुड नॉट लूज योर हार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से, कि आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि जो मालिक है जिसने हमको पैदा किया है उसने रिस्क का भी इंतज़ाम किया है। वो चरिंद परिंद को भी रिस्क देता है, हैवान को भी देता है, और जानवरों को, जंगली को जानता है, इंसान को क्यों नहीं देगा? हर एक रिस्क मुकर्रर होता है। तो ये हम पे यकीन रखना है। अल्लाह ताला जो है, तो जो हमारा क्रिएटर है वो उसने जिम्मेदारी ली है, हमारे को काम करना है, कोशिश करना है। देयर आर मेनी एवेन्यूज अवेलेबल फॉर यू। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप कारोबार करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास बहुत कम है। लोग सिर्फ जॉब को ही अहम समझते हैं। जॉब इज़ नॉट फाइनल। जॉब तो खैर चंद लोग जॉब करते हैं, आपकी मेजॉरिटी ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो बिजनेस करती है। तो आप कारोबार करना है, और छोटा मोटा कारोबार नहीं करना है। चंद लोग एक जगह आना है, एक बॉडी बनाना है, कोऑपरेटिव बनाना है। कोऑपरेटिव के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। आप अपना काम शुरू करना है और अच्छा डेवलपमेंट करना है, जिससे आपका फ़ायदा हो, आपके आसपास के लोगों का फ़ायदा हो, अपने शहर का फ़ायदा हो, अपने रियासत का, अपने कंट्री का। आप कंट्रीब्यूट करें, सर्विस करेंगे तो आपको घर का बेहतर फ़ायदा होगा। लेकिन आप कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप पूरे कंट्री को, पूरे मुल्क की आप जो है तो इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे। ये तीन चीज़ें आपके सामने अर्ज करनी थी। आई थिंक दीज आर द प्रैक्टिकल फैक्ट्स एंड यू विल रिमेंबर एंड यू विल नेवर लूज हार्ट। आप हिम्मत से काम करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक लास्ट चीज़ याद रखिए कि इसमें बहुत से लोग जो है तो इंटर वाले हैं, बहुत कम ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो एजुकेशन जो है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग किसी हाल पे एजुकेशन तर्क न करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रा सी एज बड़े हो जाए तो आप स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। आप ऑनलाइन आजकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन जो है तो
नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज है, आप एजुकेशन जारी रखें और ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। एक एग्जांपल लाल देते बात अपने ख़त्म करूँगा कि एक हमारे ऑफिस में स्टाफ में एक छोटा पोस्ट का टेक्निकल स्टाफ था। टेक्निकल स्टाफ तो वो सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ था एग्रीकल्चर का, जो छोटा सा मैट्रिक के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता था, छोटी पोस्ट था वो। इसी तरह जो है तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से उसने पहले तो बीएससी किया, उसके बाद एमएससी किया, उसके बाद पीएचडी किया और आज बेहतरीन जो है तो बिजनेसमैन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्रीकल्चर का काम करता है। तो कहने की बात यह है कि रास्ते खुले होते हैं, हमको हिम्मत से उस पर चलना है और तवक्कल रखना है, अल्लाह ताला पे, अपने क्रिएटर पे भरोसा रखना है, ही हेल्प्स यू। तो ये बात आप याद रखिए। और लास्ट बात यह है कि आज के जो हालात चल रहे हैं इससे हमको ख़त्म परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हमारा ईमान मजबूत रखना है और हम दूसरे के काम आना। हमारे एक साहब फरमाया कि खैरुन्नास मन यनफुन्नास, ये ऐसी चीज़ है कि आप जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे आप बेहतर इंसान नहीं बनेंगे। तो आज ज़रूरत है, आज के माहौल में ये एक मौके से हमको एक एडवांटेज लेते हुए आपके सामने पेश करें कि इतने सारे यंग यूथ हमारे सामने हैं, बॉयज़ भी गर्ल्स हैं। तो साहब ने जो फरमाया बेहतरीन बात फरमाई है। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है वो कि हम ऐसा इंसान बने कि दूसरों के काम आए। जब हम दूसरों के काम आएंगे तो मोहब्बत फैलेगी। आजकल ये नफ़रतें हैं, जो एनिमोसिटी है, दुश्मनी है, वो कम हो जाएगी। आप अच्छे इंसान बने, दूसरों के काम आए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी बीच फ़हीम सर से, जो एक डायनेमिक स्कॉलर है, मैं फ़हीम सर को दावत देता हूं कि आपको मुखातिब फरमाएं। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका मिला है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए जिस तरह एक यंग हैंडसम मिस्टर इब्राहिम, उनका मकसद ये है कि अपनी कौम आगे बढ़े। अपनी कौम आगे बढ़ने का मतलब है अपना हिंदुस्तान आगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर इब्राहिम, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और रहा सवाल ख्वाजा सर का, आप समझ सकते हैं, you know, he has done a lot of efforts. I know you will appreciate by bottom of your heart. But one thing you understand, he will be very happy if you get good rank. That is what you would have to do for him. So give a round of appreciation to Khaja Bhai. Now I'll tell you one thing. The person who is an architect for this all is obviously Usam sir. So give a round of appreciation to Usam sir. And look, all the people who are on the dais, I have an immense respect for Sana Saab, all the names if I don't know, sorry for that. But thank you so much, sir. You can understand, early morning, coming 10 o'clock for a noble cause is itself is a great thing. So thank you each and every one, sir. Now look, now what I want to tell you today is, I'll give an example. एक इतनी अच्छा आपको example देता हूँ. देखिए, मैं हमारे खाती साहब जो कहें, मैं उसको सर पे रखता हूँ बात. मैं आपको this time what you've got to do, that is important. Look, it's your noble duty to do the best in your exam. Probably your exam is on 7th August, I guess. Yeah, that day you've got to do. Let's see what will happen on 8th August is none of your business, but what will happen on 7th is in your hand. If you're not doing good on 7th, then you're not doing justice to yourself, your family, and the persons who have taken their time. Have that in your mind. I'll give one good example. देखिए आप एक पानी लीजिए, पानी लेकर एक ग्लास में आप फ्रीजर में रखिए, 1 घंटा रखिए आप, क्या होगा वो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। आप वो बर्फ एक 5 मिनट के बाद निकाल लीजिए, बाहर रख दीजिए आप, 1 घंटे के बाद क्या होगा वो पानी बन गया। We don't want that. हमको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई ख्वाजा साहब पढ़ाए 100 दिन, उसके बाद बर्फ कैसा हो गए, तैयार हो गए, एग्जाम में सिफर। नो, हमको कैसा बनना है? हमको वो दही बनना है जो कि दूध रखकर जब दही को कन्वर्ट करते हैं तो कभी दही दूध नहीं बनता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Have that in your mind. आपको वैसे बनना है। Look, then you are going to be successful. See, ये दुनिया इतनी अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको जिंदा रखे, उसका एहसान है। देखिए, सोचिए आप लोग, आपका मकसद क्या है? Right now, what you've got to do? You've got to pass not only for yourself, you have to pass this exam for your community, for your country. Understand? I'll tell you guys, honestly speaking, if one person is in constable, he knows the law of land.
he can take care of entire community. Understand? So you don't think that भाई चलता है अपन कांस्टेबल बने तो क्या होता? No. Have that attitude of gratitude. समझिए आप लोग आज आपको करना क्या है? जो भी ख्वाजा सर आपको समझाए हैं, प्लीज पढ़िए, उसको रिवाइज करिए. I'm telling you guys, time won't come back because I have seen life. Alhamdulillah, I'm 40 plus. I'm telling you. Why I'm doing all these efforts? Because I know you youngsters, after 5-6 years, you will repent. Don't do that. I'm talking honestly. This is the time of technology. Use it. Don't have to procrastinate. Don't think that भाई चलता है अपने को, अभी अपन यंग है यार, 20-25 के 30 के आज अब करेंगे. नो. आप ये ध्यान में रखिए, आपका जो काम है पूरी दुनिया को काम में आ सकता है. एक अच्छा आदमी कहां से कहां चेंज कर देता है. देखिए सिराज अभी इंग्लैंड में खेल रहा है. कहां का बच्चा है? हैदराबाद का. समझिए आप, बोलने का मतलब है निखत जरीन कहां के? हैदराबाद, निजामाबाद, जो भी है. कहने का मतलब है एक आदमी ट्रांसफॉर्म कर सकता है. आप लोग ये मत सोचिए अरे मैं एक कांस्टेबल बना तो क्या होगा. वन कांस्टेबल कैन चेंज एंटायर कॉन्शियंसी. हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. नो, आपको हम क्या कह रहे हैं, कुछ मत करिए, जो आपको ख्वाजा सर समझाए हैं उसको फॉलो करिए. देखिए एक्शन करिए. वो उर्दू में कहते ना, वो आरे बेर मुंह में पड़, बैठ गए हो गया, नहीं होता भाई. हार्ड वर्क करना है. मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं. हो सकता है मैं आपको लास्ट टाइम दिया होगा, मे भी नए चेहरे हैं, आपको पिकासो का एग्जांपल दिया मैं. यू अंडरस्टैंड, यू नो, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स नहीं चाहिए हमको. आज काम कर लिया खुदाफिज, ऐसा नहीं हो सकता. इमेजिन फॉर टॉकिंग हियर, कमिंग हियर ऑन द स्टेज एंड टॉकिंग, इट्स नॉट सो इजी. आई हैव टेकन 15 इयर्स ऑफ माय हार्ड वर्क. 15 साल मेहनत करके ये स्टेज पे आया हूं मैं आपको बताया, मैं भी बहुत से लोग पता है, आपको मैं बताता हूं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इतना मुझे दिया, उसका एहसान है. मैं सोच नहीं सकता था, वो अल्लाह मुझे दिखाया. मैं बोलने का मतलब है मैं भी आपके जैसा पक्का ओल्ड सिटी बच्चा हूं. 20 कंट्रीज ट्रैवल करना आसान नहीं है मेरे भाई. अमेरिका, लंदन, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है. आपकी नीयत अच्छी रहना चाहिए. आप ये मत सोचिए फ्री का काम है अपने को क्या, ऐसा मत सोचिए. देखिए इसके पीछे काफी मेहनत की गई है. आप समझ रहे हैं अरे ये क्या है, खाली शादी खाना दे दिए, सुबह के टाइम पे कोई भी नहीं आते बल्कि दे दिए. ऐसा नहीं है मेरे भाई. प्लीज ग्रेटिट्यूड रखिए, आपको एहसानमंदी पैदा करिए. और मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेज से इंशाअल्लाह ताला जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, ये पूरे जो लोग हैं अगर आके पॉजिटिवली कहते हैं कि भाई ख्वाजा सर, उसाम सर, जो भी इब्राहिम भाई आप लोग सपोर्ट करें, उसकी वजह से हमको ये स्टेज मिला है. इमेजिन एक फैमिली चेंज हो सकती है. देखिए मैं आपको बताता हूँ, बुरा मत मानिए, मैं बहनों की काफी इज्जत करता हूँ, बट आजकल लड़कियां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लड़के नहीं पढ़ रहे हैं. लड़के ये समझ रहे हैं चलता है एटीट्यूड. मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कौम को आगे बढ़ाना है तो लड़के आगे बढ़ना है. देखिए बुरा मत मानिए, आप लोग मेरे बहना है. कहने का मतलब है जब लड़का काम करता है तो लड़की को काम क्यों करना पड़ता है? हम गलती है, हमारी गलती है यहाँ पर. तो आप लोग आज से कमिटमेंट लीजिए. मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ. आई हैव इमेंस रेस्पेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटियां हैं, मैं भी उनको आगे अच्छा पढ़ाना चाह रहा हूँ. बट कहने का मतलब क्या है, लड़के आगे बढ़ना है. लड़के जब आगे बढ़ते हैं, लड़के तो उनको सपोर्ट मिलती है. देखिए बुरा मत मानिए, जब लड़के काम नहीं करें तो लड़की को काम करना पड़ेगा. अगर आप वाकई एक सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे इंसान हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आपका फर्ज बनता है कि लड़के आगे बढ़े. मैं ऐसा डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको काफी इज्जत करता हूं, बट आप भी फॉलो करिए. हम नहीं करते. खैर ये बात सेकेंडरी है, बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं जो आपको पॉइंट्स बताया हूं उसको फॉलो करिए प्लीज. एक्शन इन द राइट डायरेक्शन इज की टू सक्सेस. सब चीज छोड़ो, हार्ड वर्क करिए आप लोग. भाई थाली के मतलब 2 हो सकते हैं, बैठ जाओ या कंटिन्यू करो. ठीक है. With a full respect from my depth of my heart, Janab Ibrahim Saab and my co-partner Janab Samuddin Saab, my elder Janab Adri Saab, my friend and already later is Fahim Saab, principal for Degree College Success Group, and मेरे काबिल दोस्त मेरे सनाउल्लाह साहब एंड वेटनरी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा भी खास है हमसे, क्योंकि हैदराबाद में सबसे पहले फ्री कोचिंग हमने इन्हीं की कैंपस में किया है. तो इसलिए मैं अपना सावेटी और मुमताज़ मैडम और
माय स्टूडेंट्स, वैसे भी आप लोग 3 महीने से मुझे सुन ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर अंदाज में ज़्यादा टाइम आउट बना लेते हुए सबसे पहली बात ये थी कि मैं तहे दिल से अगेन आई एम टेकिंग द वर्ड फ्रॉम डेप्थ ऑफ माय हार्ट वेरी मच थैंकफुल टू दी मुगल ग्रुप फंक्शन हॉल के जो ओनर हैं इब्राहिम साहब और उनके वालिद आबिद साहब, क्योंकि जब 80,000 का नोटिफिकेशन आया था सीएम साहब ने उसको अनाउंस किया था, लेकिन वो अनाउंस किया था 9 मार्च 2022 को। लेकिन क्योंकि हम कई सालों से फ्री कोचिंग देते आ रहे हैं, सबसे पहली बार हमने जो फ्री कोचिंग्स का इंतज़ाम किया था आदिलाबाद में, उस वक्त बस जो हमने आगाज़ किया था, उसके बाद कलेक्टर अहमद अदीब थे जो अभी सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है, उनके क्या बोलते हैं उनसे इफ्तिताह किया था आदिलाबाद में हमने फ्री कोचिंग्स का। तो वहाँ से जो हमारी जर्नी चली, कई स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए, तो उन स्टूडेंट्स के ज़रिए मुझे एक बात पता चली थी कि सीएम साहब 1 साल के अंदर 80,000 तक के वैकेंसीज को अनाउंस करने वाले। तो इमीडिएटली मैं रिएक्शन में आया और सबसे पहला प्रोग्राम हमने अमीरपेट में किया था तकरीबन। अब मुझे बाद में बताया गया कि तकरीबन ये हैदराबाद की तारीख में ये पहला प्रोग्राम था कि वो 3,000 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था उस प्रोग्राम को। तो इमीडिएटली वो जो था क्राउड देखकर वहाँ की जो इंतजामिया थी वो इमीडिएटली मेहदीपट्टनम में 27 दिसंबर 2020 को, यानी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और मुझे बाद में बताया गया कि मेहदीपट्टनम में ट्रैफिक जाम हो गया, तो फंक्शन हॉल के अंदर तकरीबन 4,000 स्टूडेंट्स थे। तो ये जो स्टूडेंट्स का क्राउड देख के मुझे मेरा जहन में ख्याल है क्योंकि क्यों ना इनको एक दिन के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर रहे थे 1.5 साल पहले, सबसे पहले प्रेस से पहले और सोशल मीडिया से पहले हमने इत्तला दी थी नौजवानों को कि सरकार 80,000 सरकारी तकर्रात करने वाली, और जो स्टैटिस्टिक्स मैंने दी थी उसी स्टैटिस्टिक्स पर 1.5 साल के बाद सीएम साहब ने असेंबली से अनाउंसमेंट दिया, तो हमने उसकी इत्तला 1.5 साल पहले दी थी और स्टूडेंट्स से ये गुजारिश की थी कि हम कोचिंग देने तैयार हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए। मेरा मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, तो मैं असल अपनी बात पे आ जाता हूँ। जो हमने जो कोचिंग्स किया था, बिल्किस मैडम खुद गवाह है, जो हमने उर्दू ऑफिसर्स की जो गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट डाला था, हमने इमीडिएटली मैडम को कांटेक्ट किया था, मैडम आपके पास बड़ा हाल है, तो आपका हाल, क्योंकि वहाँ पे 200 की कैपेसिटी थी सिटिंग की, आपका हाल एक थोड़े दिन के लिए हमको दी थी, मैडम ने दिया था। टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए हमने गुजारिश की, तब भी मैडम ने दिया था। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हैदराबाद में आज जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स में, वो जो बिल्किस मैडम के जो हाल में हमने कोचिंग की थी, वहाँ पे 90 मेंबर्स सिलेक्ट होकर आए। सी हर्षित आप यहीं से वोल्टा कॉलेज है, स्कूल है, वोल्टा स्कूल है जो रेजिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर में आता है, वहाँ पे 9 टीचर्स हैं यहीं पर। उसके बाजू मेंस और गर्ल्स खाली वहीं पे 18 मिल जाएंगे आप, ओके। तो आप यहाँ चारूनाथ ब्रांच पे वहाँ पे 4-5 मिल जाएंगे। तो जो सक्सेस मिला हमको, बाद में उर्दू टीचर्स, उर्दू ऑफिसर्स की हमने कोचिंग दी थी। मुख्तसर कोचिंग का टाइम काफ़ी कम था, शॉर्ट नोटिस में एग्ज़ाम हुआ था 25 दिन, तो 25 दिन में हमने कोचिंग 2 सिलेक्ट होके आए थे मैडम, यस। तो नाउ दे आर अभी से एक सीएम कैंप ऑफिस में है, एक तलासानी श्रीनिवास यादव के पास है। मैं आज उनको इन्वाइट करने वाला था, लेकिन मुझे अपना जहन में नहीं आया, क्योंकि मेरी टाइट शेड्यूल मेरे जहन में वो बात नहीं है। मेरा हमने आपके हाथों से तहनीत भी दिलाई थी। उसके बाद शाम साहब के अंडर में हमने पहली कोचिंग की, कई प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए। 20 मार्च 2022 को नामपल्ली में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था रेड रोज़ में, ओके। मुझे बाद में बताया गया कि रेड रोज़ पूरा भर गया था, जैसा जहाँ तक तो मैं स्क्रीन पे देख पाया या जहाँ तक मैं नज़रिए में देख पाया, लेकिन उसके बाद भी कई स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, खड़े के हमने हमारा प्रोग्राम उन्होंने सुना, और हुसाम साहब ने भी वहाँ पे थे इंशाअल्लाह। तो मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम एक अलग चीज़ थी। उसके बाद जो ऐसा जो रोल था वो हमारे मुगल्स के मैनेजमेंट यानी ओनर्स आबिद अली साहब और इब्राहिम साहब ने जो रोल दिया, क्योंकि मेरे जहन में एक बात थी कि अवेयरनेस प्रोग्राम से कुछ होने वाला नहीं है, रेगुलर कोचिंग्स की ज़रूरत है। तो मैं जो डायग्राम मेरे जहन में, जो नक्श मेरे जहन में चला था, फंक्शन हॉल्स उमूमन हर दिल्ली में हमारे मुस्लिम ओनर्स के फंक्शन हॉल से कोई फंक्शन हॉल अगर हमको दे तो हम कोचिंग दे पाएंगे। तो हुसैन साहब के ज़रिए से ये पहली बार इतनी बिग वे में हम कर पाए। कॉलेजेस में तो हम थोड़ा सा कॉम्पैक्टनेस रहता। तो हैदराबाद की ये तारीख रही कि मुख्तलिफ इदारों ने फ्री कोचिंग्स को अनाउंस किया, लेकिन जो रीडिंग्स आए आप सब गवाह हैं उस बात के, हुसैन साहब भी गवाह हैं और कई स्टूडेंट्स गवाह हैं
बड़े बड़े इदारों में नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुनासिब नहीं। बड़े बड़े इदारों ने ग्रुप 1 की कोचिंग को ऑर्गेनाइज़ किया। 3 दिन में 18,000 अप्लीकेशन, 3 दिन में 5 बच्चे। कल की मुझे रिपोर्ट है कि 5:30 बजे क्लास थी, 6 बजे तक भी कोई भी नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तो इस अंदाज में जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने फ्री कोचिंग को ऑर्गेनाइज़ किया, वो माहौल में हमने सुबह के टाइम पे हैदराबाद के नौजवानों को 7 बजे जगाया और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमने कोचिंग दी और 3 महीने आज कंप्लीट हुए। तो मुझे खुशी है कि हम हैदराबाद में अल्लाह ताला ने हमसे वो काम लिया, हम सक्सेस हैं। ओके, लेकिन जैसा कि आप अभी भी 45 डेज बाकी है, आप नाउम्मीद ना हो। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा सब्जेक्ट जो भी हम सिलेबस कंप्लीट कर पाए, लेकिन जो भी थोड़े मैथ्स में जिनको भी थोड़ा सा अभी स्टिल दे वांट समथिंग, हम जुलाई बकरीद ईद के बाद नए बैच को चालू करेंगे। आप जो भी 45 डेज अभी भी आपके हाथ में है। प्रीलिम्स अगर कामयाब अगर आप होगे, हम तो सिलेबस कंप्लीट कर दिए, आप कामयाब होगे तो समझो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप पुलिस स्टेशन में ड्रेस पहन के बैठे पुलिस की तरह, चोर की तरह। ओके, तो डेफिनेटली आपको जॉब आएंगी। मेंस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। तो मैं इस मुख्तसर लफ्ज़ों से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम इज़ रनिंग वेरी शॉर्ट। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है इब्राहिम साहब को भी मुखातिब करना है। तो जब हमने 2004 में जो फ्री कोचिंग्स का ऑर्गेनाइज़ किया था, कई रिजल्ट्स आए। आज कई हमारे स्टूडेंट्स RDO से, DSP से, SPs हैं, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं, कॉन्स्टेबल्स और नंबर ऑफ हैं। लेकिन हैदराबाद आने के बाद मैं पहली बार ओनली मुस्लिम्स के अंडर में मैंने ये काम किया। मैं चाहता था कि ओनली मुस्लिम्स ही नहीं, वैसे तो हम BC SC ST सबको कोचिंग देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हैदराबाद स्टैटिस्टिकली इट्स ए वेरी आधा मुस्लिम हैदराबाद में होता है, तेलंगाना में स्टैटिस्टिकली। तो एक ख्वाहिश थी मेरी कि हैदराबाद में हम काम करें और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तो इंशाल्लाह जुलाई 11 के बाद जो भी हम सैलाबाद में जहाँ पे भी या जो भी फंक्शन हाउस अगर हमको देने के लिए तैयार हैं, हम उनसे मदद लेकर, क्योंकि तकर्रुरात आगे भी चलने वाले हैं। 80,000 वैकेंसीज हैं और अल्लाह ने ये जो रिक्रूटमेंट्स की वैकेंसीज़ का अनाउंसमेंट, यानी पहली बार अनाउंसमेंट लोगों तक अवेयरनेस करने का काम हमसे किया। और एक इस मंच से सर आप सब लोगों की एक तवज्जो चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम, मेरे पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। मैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की 80,000 वैकेंसीज़ की तो आपको अकेला दे चुका हूँ, लेकिन अब एक सेंसेशन बॉम्ब यहाँ पे खोलने वाला हूँ, उसको सुनिए। और वो ये है कि जैसा रैतू बंधु CM साहब ने अनाउंस किया, उसको कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि देखा वोट बैंक किस तरीके से CM KCR वापिस इख्तियार में है। तो 80,000 जैसे CM साहब ने वैकेंसीज़ को अनाउंस किया, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो, पता नहीं कितने लोग जानते हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। 8 लाख वैकेंसीज़ को नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया, वो 6 महीने के अंदर नोटिफाई होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 लाख वैकेंसीज, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। ओके, तो 8 लाख वैकेंसीज। और उसमें खुशी की बात यह है कि मोस्टली रेलवे डिपार्टमेंट और आपके डिफेंस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उसका सिलेबस और आपका कांस्टेबल का सिलेबस 80% सेम है, आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 80,000 और 8 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करने वाले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट 2024 में इलेक्शन को जाएंगे, तो इनकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और 8 लाख वैकेंसीज को अनाउंस कर चुके और वो रिक्रूटमेंट वेरी शॉर्टली होने वाला है। कितने लोगों को ये बात मालूम थी? कोई भी नहीं यार, मैं जानता हूँ तुम्हारी यू आर देवताओं पर नहीं, तो वाट यू आर और मेरा एनी हो, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई हैव विद मी। ये 80,000 उनके भी तो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट हुआ। अभी 9,000 वैकेंसीज नोटिफिकेशन रेडी है ग्रुप 4 का, वेरी शॉर्टली पब्लिक सर्विस कमीशन उसको अनाउंस करने वाली है। प्लस 2-3 महीने के अंदर ये 8 लाख वैकेंसीज जो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया, प्रधानमंत्री ने, वो भी वेरी शॉर्टली आने वाले हैं। तो आप अगर यहाँ से भी जम के रहेंगे, 8 लाख और 80,000 यानी रफली पकड़े 9 लाख वैकेंसीज कोई मामूल नहीं होता। अभी एक एग्जाम्पल बताया गया कि एक 0 लेवल से एक कांस्टेबल की बीवी कलेक्टर बन पाई। तो अगर आप 8.5 लाख 9 लाख वैकेंसीज पे अगर आप ऑब्जर्व नहीं हो पाए, जॉब को नहीं मार पाए, ओके, तो आप ज़िंदगी में आप मतलब कि यू विल बी एट 0 लेवल ऑफ। ओके, बिजनेस तो कोई भी कर सकते, करना ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, बट इफ़ यू डोंट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटीज़ यू विल बी लूजिंग मैनी थिंग्स। ओके, तो इंशाल्लाह हम
इस पर भी काम करेंगे। आप सब लोगों की क्या बोलते हैं एक बेस्ट ऑफ लक कहते हुए मैं आप तमाम लोगों को अगेन आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन। आई थैंक कंपनी लिफ्ट ऑफ में जनाब इब्राहिम साहब, इनके हमारे आबिद साहब, जो हमने कई फंक्शन हॉल्स को टच किया लेकिन कोई किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक ही फ़ोन पे आबिद साहब और इब्राहिम साहब की वाली, तो इब्राहिम साहब इमीडिएटली दिया की बात, तो घटना से मैं भी शौक हो गया। वाकई एक बार किसान साहब को पूछ रहा था कि वाकई क्या मुश्किल मिल गया क्योंकि किसी ने हमको नहीं दिया तो थोड़ा सा मैं भी तजवीज़ में आ गया था कि हुआ नहीं हुआ। बहरहाल वेरी मच थैंकफुल टू सर फादर एंड इब्राहिम साहब। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आपसे मुखातिब आप सबका जो है सो मैं दिल से जो सो मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ जो आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग रहबरी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारे डिग्निटरीज़ का। मैं एक ही बात बोलूँगी, सारे हम सबकी फितरत रहती, अज़ा होती, मौज़न का काम है अज़ा देना। हमारा जिसको अल्लाह तौफीक देता उन्हें नमाज को जाता, बाकी के सुन के खामोश हो जाते। तो ये इस तरीके से अभी स्टेज पे सुन के फिर अज़ा के जैसा फिर बाहर निकल के अपना जो करना है वही करना है बोले तो ऐसा क्राउड या ऐसा प्रोग्राम्स का कोई मतलब नहीं निकलता। मैं एक शेर बोलूँगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता। मेरे भीगे हुए परों को ना देख, ताकत परवास को देख, परों से नहीं हम हौसलों से उड़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे को ये है कि हमको हौसला बनाना है, अपना इरादा मुसम्मिम बनाना है कि हमको लाइफ में कुछ करना है, ना कि हमको जो है सो किसी की बात को लेके ये बोलना है कि नहीं हमारा नहीं होता वहाँ पे। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कोई काम नहीं हो सकता। तो आप सबसे यही है कि शैतान के पास भी इल्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मरदूद हो गया, वो अखलाक की वजह से, आजिज़ी इनकिसारी ना होने की वजह से। तो हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट है, अखलाक बहुत ज़रूरी है, हमारा जो लुक होता वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एजुकेशन एक सेकेंडरी है मैटर उसको। लेकिन आप सबसे गुजारिश है मेरी, इनके साथ साथ अखलाक को अपनाओ आप लोग। जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं वो है हमारी एटीट्यूड की वजह से हम पीछे हैं। हमारा अवेयरनेस हमारे को जो नहीं है, लैक ऑफ जो नॉलेज है हमारे पास, हम उसकी वजह से पीछे। माशाल्लाह कई ऐसे लोग हैं रहबरी कर रहे हैं हमारी कौम के लिए, और कई ऐसे जो है सो पर्सनालिटीज़ है जो अपनी कौम को आगे खींच के लाना चाहते हैं। लेकिन हमारे में वो जो होना चाहिए कि हम वो रास्ते पे जाए, रहबरी जो कर रहे हैं उनका जो थैंक्स बोलते हुए हम उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि यहाँ 10 मिनट बैठे सुने, क्लैप्स करें, बाहर निकलने के बाद हमारे को जो करना है वही करना है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं। सारे लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, एक सुबह से उठ के फजर के बाद से सब कोशिश करते रहते हैं कि हमारी कौम को कैसा हम खींच के आगे लेकर आए। गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज एग्जाम्स लिखा है, उनको अच्छे से सेट करें, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, लेकिन इसका फ़ायदा होना इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए ड्रॉप आउट्स में सबसे ज़्यादा कौन है, ये आप थोड़ा सा इसका सर्वे करिए। 3-3 घंटे बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस के लिए फ़ोन आप यूज़ करें कि भाई हम कहाँ पे जो सो पीछे हट रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास कमी है, कहाँ हमारे को रहबरी नहीं हो रही, नॉलेज कहाँ नहीं मिल रही। ये चीज़ों को देखिए। काफ़ी लोग जो है सुना दर्द के साथ अपनी कौम की दर्द के लिए कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं रात के 12-12 बजे तक। मैं ख्वाजा साहब को तो मैं खुद पर्सनली मैं कई मरतबा देखी, अगर कोई एक आके उनसे मिलता है और बोलता है तो बराबर रहबरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आया के 2 बच्चों को एडमिशन कराना था, ख्वाजा साहब इतनी रहबरी करे अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर यानी एंट्रेंस के बाद वो बच्चों को तालीम दिलाने में मैं कोशिश मेरी कामयाब हुई। तो ये चीज़ें हमको एक दूसरे की फ़िक्र करना ज़रूरी है। एक दूसरे की अगर आप फ़िक्र करेंगे तो इंशाल्लाह हर कोई आगे बढ़ेगा। अगर एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। नहीं, अगर सिर्फ एक दूसरे के तनखीदा करना है, ब्लेमिंग करना है, फिंगरिंग करना है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जो चीज़ यहाँ से मिल रही है उसको फ़ायदा हासिल करिए और आप अपने आप को उतना प्रिपेयर करिए, मेंटली फिजिकली आप प्रिपेयर करिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक में सलाहियत है, हर एक में काबिलियत है। अल्लाह ताला बगैर किसी मकसद के किसी मखलूक को वजूद में नहीं लाया। हर एक को कोई ना कोई काबिलियत सलाहियत दे के दुनिया में भेजा। तो उसको पहचानो, उसको समझो और तरक्की हासिल करने की कोशिश करो। और जो मौके मिल रहे, जो आपको रहबरी हो रही है, उसको सही तरीके से आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। और आप सबको मैं यही बोलूँगी ऑल द बेस्ट, और आप सबकी कामयाबी के लिए मेरी दुआ है। अल्लाह हमारे सर आज सुबह ही मुझको फ़ोन कर रहे थे कि सर बोलना भूल गया था। बोला ठीक है सर, ऐसे मौके मुझको चाहिए कि अपने कौम को कुछ
बोलने का, मैं जो हासिल कर रहा हूँ उसको बोलने का मौका मुझको दें। और मैडम भी अच्छी तरीके से माशाल्लाह इनके कॉलेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट हुआ है हमारा। तो बोलने का मकसद ये था कि आप लोगों को जमा करने का, यहाँ पे एक कौम की खिदमत सर ने जो शुरू की है यहाँ पे तमाम लोगों के लिए, उसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और इंशाअल्लाह ताला करने की कोशिश भी करेंगे इन फ्यूचर। तो एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, एक ये है कि भाई हैदराबादी जो है स्पेशल अपन लोग, मैं हो आप हो, मैं आपको यहाँ पे जो दिख रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे भी बैठने के काबिल का नहीं था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इतना शाइनेस, इतना फेयरनेस मैं ठहर नहीं सकता था मैं वहाँ पे। तो अपने में ये थोड़ी चीज़ें हैं। एक सिंपली एक हैदराबादी है जिसको जब तक के उन्हें औंधे मुँह गिरा नहीं ना, उन्हें उठता नहीं। क्या तो उसको जब तक के उसको दिए नहीं आप, या उन्हें खाया नहीं, या उन्हें गिरा नहीं अपने आप को, तो अपने आप को उठता, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो ये वही बंदा है जो गिराया गया, उसके बाद में आपके सामने ठहरा हुआ है। तो उस मोमेंट को आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। ये हिडन क्वालिटी हैदराबादियों में है। ये हिडन क्वालिटी, मैं नियर अबाउट द 10,000 प्लस स्टूडेंट आई ट्रेन ऑल ओवर द इंडिया। आई एम फ्रॉम NSDC, GTT, 4 कंपनी से टाई अप हूँ मैं यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ों की कोर्सेज लेता हूँ हर कॉलेज में। सर के कॉलेज में भी हुआ, मैडम के भी कॉलेज में हुआ, तमाम कॉलेजेस में हुआ। तो इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करो। एक सर से परसों बात हुई थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ एक्सपीरियंस उनका। तो सर बता रहे थे कि एक जगह उनको प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना हुआ। एक सर है, ही इज सो मच टैलेंटेड अबाउट दैट, ही अप्लाई फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। So recruiter, HR is going to ask you about that. How many years experience you have? Sir, I already written in my resume, my CV. So it's a 20-year plus experience. So I'm going to be calling you from tomorrow onward. कौन बोलेंगे? HR बोला किसको? The principal who going to be go for the job. तो वो फोन किया कॉलेज या स्कूल को कि भाई how many experience he is having about that. तो वो क्या बोला, सर he's having a 20 year plus of experience. No, I need the experience. तो वहाँ से वो जो एक्सपीरियंस टीचर था वो बोला कि सर he's having only for the 1 year experience. वो कैसा सर? 1 साल उन्होंने अपना टैलेंट बता के इम्प्लीमेंट करे, उसी पैटर्न को 20 साल रिपीट करे, उसी पैटर्न को 20 साल रिपीट करे। तो एक्सपीरियंस कितना हुआ सर? 1 साल। तो अपनी चीज़ों को, एवरीडे स्किल्स को डेवलप करो। अपने में जो क्वालिटीज़ है ना, हिडन क्वालिटी बहुत सारे हैं हैदराबादियों में। मेरे को मालूम है ये, क्योंकि मैं खुद भी एक हैदराबादी हूँ, मैं खुद भी बहुत सारे ट्रेन कर चुका हूँ। तो ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो अपने आप से निकालो उसको। तो जब तक कि अपने आप को प्रॉब्लम पे डालेंगे नहीं, माइक नहीं होंगे कुछ भी। सर एक 2 मिनट टाइम ले सकता हूँ? अच्छा ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। थैंक यू वेरी मच अबाउट दैट कॉलिंग मी हियर। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय हम्बलनेस। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो यहाँ पर आए। मेरी मुराद डॉक्टर हुसैनुद्दीन साहब से है कि जिन्होंने ये पहल की। आपको पता होगा ख्वाजा साहब, हम जो है तो जैसे अनाउंसमेंट हुआ हम लोग बहुत कोशिश में थे कि कहीं हाल मिल जाए, कोई काम शुरू कर दे। तो सबसे एक फ़ोन पे तैयार होने वाले डॉक्टर हुसैन साहब यहाँ मौजूद है। इनका पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, ख्वाजा साहब का ख़ास तौर से, हुसैन साहब का, और हमारे ये मुग़ल फंक्शन हॉल के इब्राहिम साहब हैं ना, इनका। ये बहुत ज़रूरी है, ये इतना बड़ा काम है कि आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप जब आप डेवलप हो जाएंगे, जब अंदाज़ा लगाएंगे कितना बड़ा काम था। तो वक्त ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर हुसैन साहब से, और आपको जो है तो अपने ज़रीन ख़यालात से नवाजें और रहनुमाई फरमाएं। डॉक्टर हुसैनुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनाउल्लाह साहब, हमारे तनवीर साहब, इब्राहिम साहब और प्रोग्रेस के प्रिंसिपल साहब, खादरी साहब, फ़हीम साहब, बिल्किस मैडम, नईम साहब और
आपके डायनामिक आपके सर ख्वाजा साहब, आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो मेरी दावत के ऊपर आप लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। पहले इस शेर से शुरू करता हूँ। मुश्किल पड़ी तो क्या, मुश्किल पड़ी तो क्या, मुश्किल को शाह तो है, सामने दुश्मन खड़ा तो क्या, सर पे खुदा तो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात के चंद मुट्ठी भर मुसलमानों को मेरे हवाले किया और ख्वाजा सर से इस काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर हम तशरीफ आप 3 महीने यहाँ पर कोशिश करे हैं। मैं एक फोन हमारे आबिद भाई को जो प्रोग्रेस के जो मेन चीफ डायरेक्टर है, जो आप लोग यहाँ पे खादरी सर और ख्वाजा सर कई फंक्शन हॉल को बोले, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, मगर आबिद भाई मेरे एक फोन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये तौफीक या हिदायत दे दी थी कि हुसैन भाई आप लीजिए कि ये मुगल फंक्शन हॉल आपके लिए खुला हुआ है। तो मैं आबिद भाई को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनके बेटे को भी यहाँ पर इब्राहिम भाई है, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे काम लेना चाहता है उसी से काम लेता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से भी हर एक काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ले। आप दुआएं करें। जो बिल्किस मैडम ने जिस तरह से अज़ान होती है, जिसको मुसल्लत होता है, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत देती है, उन्होंने मस्जिद की तरफ जाते हैं। जो हिदायत नहीं पाते हैं, जो अपने कामों में, अपने इंटरटेनमेंटों में, दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं, अगर आप लोगों को अगर हिदायत दी तो ये पुलिस कांस्टेबल एसआई के क्या आप अपने चैलेंजिंग के हिसाब से आप एग्जाम्स को प्रिपेयर करके अपने आप को एक सीट लेके आके आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लेवल पे आप अपने आप को प्रिपरेशन करिए। ये आप लोगों के जज्बात होने चाहिए। हम लोगों के जज्बात की जरूरत नहीं है, आपके जज्बात की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एक अज़ा के तरीके से मौसम अज़ा दे के चले जा रहा है, मगर आप लोगों को परमानेंट मुसल्ली जो बने हुए ख्वाजा सर के, आपको क्या मेरा इस मकसद में कामयाब होना ये आपका अव्वलीन फरीजा है, क्योंकि मुल्क का ये तकाजा है। किस तरह से क्या बदनामगी अपने इंडिया की हो रही है, वर्ल्ड में हो रही है, तो वो ये नौजवान नस्ल इस वर्ल्ड को, जो इस कंट्री की जो भी परेशानी और प्रॉब्लम है, आप लोग ठहरे, सच्चाई के ऊपर ठहरे, सच्चाई और कदम आपकी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला के कुरान में आए इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम इंसानों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम जब इंसानों की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो ये कुरान की आयत इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह के दीन के लिए मदद करो। अल्लाह के दीन की मदद करना सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है मेरे भाई। आप किसी को खाना खिलाना, आप किसी को पानी पिलाना, जो बेरोजगार है उनको रोजगारी देना, ये अपना फर्ज आइन है। आप पड़ोसियों के हकूक नहीं अदा कर रहे, माँ बाप के हकूक अदा नहीं कर रहे, अपने उस्तादों के हकूक अदा नहीं कर रहे, तो आप कहां से कामयाबी हासिल कर सकेंगे? कामयाबी जब मिलेगी जब आप क्या अपना पूरे के हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूक इबादत होना चाहिए। हमारे अंदर ये तमाम हकूक हैं, अपने आप को क्या है सेल्फिश बन गए, बाजू वाला भूखा है उसका ख्याल नहीं है। आप आज के बाद से ये सोच लेके उठ रही है, ये तरबियत ले लो। आपका जहाँ घर है, आपके राइट साइड 20 घर, लेफ्ट साइड 20 घर, उनका डाटा नोट डाउन करो। उसमें से कितने बेवा है, कितने यतीम है, कितने बच्चे अनएजुकेटेड है, कितने बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, उनका डाटा आप सर्वे करो। आप क्या अपने आप में एक जुस्तजू कौम के मिल्लत का क्या अपना फिक्र पैदा हो जाएगी। मैं आज अल्लाह ताला के फजल करम से एक उम्मत फाउंडेशन, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे को रमजान और मुबारक में अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दिया। मैं 30 करोड़ जो इंडिया में मुसलमान है उन लोगों को ये उम्मत फाउंडेशन में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम एजुकेशन सेक्टर, तमाम जितने ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि उन लोग एक रहबरी करें, एक दूसरों की मदद करें, एक दूसरों के जो प्रॉब्लम्स है, जो जॉब्स ले से, अगर किसी को एडुकेट्स की जरूरत है तो वो एडुकेट्स क्या अपना मिलेगा, किसी को डॉक्टर्स की जरूरत है तो वो डॉक्टर मिलेगा। तो हर फील्ड में जैसा कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में ओल्ड सिटी के तमाम इंस्टीट्यूशंस में लगाना चाह रहा हूँ। मेरे पास उतनी टीम है, आप लोगों भी आइए, ख्वाजा सर के जैसे और फ़हीम सर के जैसे, नईम सर के जैसे, यहाँ पर मैं मल्टी टैलेंट के अपना
आप लोगों के पास है, वो टैलेंट आप लोगों को देना चाह रहे हैं। आप वो टैलेंट से अपने आप को, आप भी एक टैलेंटेड बन के आप भी यहाँ पे स्टेज पे आके अपने छोटे लोअर क्लासेस, स्कूल्स के क्लासेस, हायर क्लासेस के बच्चों को जाके आप भी अपना टैलेंट परफॉर्मेंस करें। हम लोग आज GTT गैलेक्सी टैलेंट टेस्ट, गैलेक्सी टीचर्स ट्रेनिंग बोल के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि BEd DEd जो बच्चियां हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेशन अपनी कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उम्मत फाउंडेशन का यही मकसद है कि हर कोई बच्चा बिजनेसमैन बन जाए। जैसा कि खाजा सर बताए, मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग, मैं एक छोटा सा का, मैं और बिल्किस मैडम एक वोकेशनल कॉलेज बोल के हम लोग एक स्टार्ट करें। आज अल्लाह ताला के फजल करम से एक ऑर्गेनाइजेशंस के 5-5, 8-8 ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग एक वोकेशनल लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर साइंस बोल के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से परमिशन ले लेके हम लोग ये स्टार्टअप करे थे। आज जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज, स्कूल्स और दूसरे क्या अपना गवर्नमेंट के सेक्टर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग की फ्री ट्रेनिंग हम लोग गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दे रहा है। नर्सिंग की ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, ये फ्री ट्रेनिंग गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम लोग नई मंजिल का एक प्रोजेक्ट था जो इलिटरेट, जो ऑटो कारपेंटर, प्लम्बर थे, उन लोगों को हम लोग 10th की कोचिंग फ्री दी। तो कहने का मकसद ये है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हम बच्चों को वेल एजुकेटेड कर रहे हैं ताकि आपके जो टारगेट्स है वो टारगेट आप अचीव करें। और लॉट ऑफ मैं मेडिकल कैंप्स करता हूँ, मैं लॉट ऑफ क्या है जॉब्स मेला कंडक्ट करता हूँ। जॉब मेला इसलिए करता हूँ कि आप लोग का जॉबलेस नहीं रहना है। चबूतरा मशीन, पुलिस डिपार्टमेंट वाले चबूतरा मशीन निकाले, मैं जॉब मशीन निकाला हूँ। कई मैडम को भी मालूम है, टास्क बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिग्री कॉलेज को, जो डिग्री कॉलेज जिसके पास है वो टॉप तेलंगाना गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन लोगों का 650 कंपनीज है। तो आप लोगों में से अगर किसी को जॉब चाहिए उसकी गारंटी मैं देता हूँ, जॉबलेस आप लोग नहीं रह सकते। इतना रिक्वायरमेंट है। आपको 9 सर और 5 सर के आप लोगों को स्किल्स के प्रोग्राम्स आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। आपको हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, आप लोगों को जॉब गारंटी के। उस आंसर बोल रहे हैं कि आप लोग को 100% हम जॉब देंगे। अगर पहले टारगेट आप पुलिस कांस्टेबल SI का एग्जाम प्रिपरेशन करके पहले गवर्नमेंट की सीट मारने की कोशिश करिए, अगर वो सीट नहीं मिल रही तो हम आप लोगों को ये गवर्नमेंट प्राइवेट जो कंपनी से उसमें हम लोग जॉब देंगे। एक्सिस बैंक वाले को मैं एवरी मंथ 100 कैंडिडेट्स देने हैं मेरे। अगर आप इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन से अगर रहेंगे तो हम आप लोगों को एक्सिस बैंक, HDFC बैंक में हम लोग आप लोगों को जॉब दे रहे हैं। और इसके अलावा जैसा कि यहाँ पे खादरी सर बनाए, आप लोग बिजनेसमैन बनो। मेरी कोशिश है कि आज छोटा सा का सुपर आप किराने की दुकान डाले, कल आप एक मार्ट के जैसा आप अपना एक सुपरमार्केट लॉन्च कर सकते हैं। आज आप एक छोटी कपड़े की दुकान डाले तो कल एक बड़ी कपड़े की दुकान डाल सकते हैं, उसके ब्रांचेस बना सकते हैं, स्टेट लेवल पे बना सकते हैं। कुर्ते पैजामे हम पहनते हैं, मगर कुर्ते पैजामे में कि हम मार्केटिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। ये यूनिट्स आप लोग डालो, इसकी मार्केटिंग करो। आज छोटा बिजनेस रहता है, कल बड़ा बिजनेस होता है। आप तेलंगाना लेवल पे, इंडिया के हर लेवल पे और दूसरे कंट्रीज को भी आप कुर्ता पैजामा मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करने वाले बन सकते हैं। ये चीज आप लोगों के अंदर उजागर होना चाहिए। आप लोगों को ऐसे स्किल्स, बिजनेस के स्किल्स सीखना चाहिए। तो आज अपना छोटा बिजनेस होता है, कल ये बिजनेस बड़ा बिजनेस हो जाता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि मैं हमारे खाजा सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे जो भी डाइस पे तशरीफ लेकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे ज्यादा बड़ा शुक्रिया मैं आबिद भाई को करता हूँ और आबिद भाई के जो बेटे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने हमारे को यहाँ पर फ्री हमारे यहाँ पर प्लेस दिए। हम उसका आबिद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस शेर से अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हो खुदा खामी उसको मिटा सकता है कौन? जज़ाकल्लाह खैर। मैं आली जनाब इब्राहिम सर से गुजारिश करता हूँ कि हम आप लोगों को मुखातिब फरमाएं। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद को ये चीज़ का मौका मिला आप लोगों की खिदमत करने का। उसाम सर जो है यहाँ पर हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिए। जैसा कि उसाम सर बोले कि एक कॉल पे वालिद साहब सुन के इमीडिएटली हाँ बोलते तो
लिटरली इट वाज लाइक दैट ओनली। एक ही कॉल करे थे उन लोग, लाइक ऐसा रहता कि पापा हर चीज़ डिस्कस करके देना है एंड ऑल बोल, बट शाम सर फ़ोन करते कि एक ही कॉल पे इट वाज यस। और मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत आप लोग इतना ताउन आप लोग आए रेगुलर। एक बार बीच में भी मैं आया था, मैं देखकर खुश हुआ कि ख्वाजा सर जो तरीके से पढ़ा रहे थे, जो तरीके से उन्होंने पढ़ा रहे थे, इवन आई वाज फीलिंग सो इंटरेस्टिंग कि मैं भी बैठ के सुनूँ क्या। माशाल्लाह ख्वाजा सर तो रियली गुड एक्सपीरियंस। एंड और एक बात बोलना चाहूँगा उसाम सर, ख्वाजा सर, आप लोग को एक बेस बना के दे दिए। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जब देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता, नीचे का बेस जो फाउंडेशन रहता, आप दोनों बना के दे चुके हैं। अब ये आगे आपकी जिम्मेदारी है, अब आप कितने स्लैब्स डाल सकते डालिए। अब आप 100 माले की बिल्डिंग बनाइए, 1000 बनाइए, अब आगे आप लोगों के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे। जो भी हमने पढ़ाया बुक्स के ताल्लुक से, वैसे भी थोड़ा सा तकरीबन 2 लाख के बुक्स परचेस किए गए थे, लेकिन लैक ऑफ पेमेंट हो चुका है, लेकिन लैक ऑफ शॉर्टेज अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो भी बुक्स है हम आपको देंगे, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इसलिए 3 फ्रॉम बॉयज़ एंड 3 फ्रॉम गर्ल्स हम दे देंगे। मेहमान के रुखसत होने के बाद अब बाकी का जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है वो आपके नक्शे में देना, ठीक है।
honor of this great function. And this team, I don't know the names of them, those who are behind working with him, I thankful to them. I have did nothing to Foyer. Only small thing I have given my functional. That is my functional. Night the functions will be there. Morning anyhow the functions will be empty. So sir has came and requested me. Immediately I agreed that चलिए सर आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं और हम फंक्शनल अपना दिए और इसका फ़ायदा आप लोग उठाए और मुझे उम्मीद है जो भी IAS, IPS, कांस्टेबल्स जो मेरे बेटियां बैठे हुए हैं ये भी जो है कोई अच्छे टीचर्स पोस्ट के लिए जो ट्रेनिंग सर दिए हैं इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग और अप्लाई करिए। ऐसा मत सोचिए कि हमको जॉब मिलता या नहीं मिलता, अपना काम है कोशिश करना और कोशिश से ही अपने को फल मिलता। अगर जब तक अपन कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 100% आपको मिलेगा और स्ट्रगल करिए लाइफ में, हमेशा आपको जीत मिलेगी। बगैर स्ट्रगल करेंगे कोई लाइफ नहीं मिलेगी अपने को। मैं अपनी एक छोटी मिसाल आपको देता हूँ। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर मेरे पूरे बहुत अच्छे पैसे वाले लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं, लेकिन मैं उनके पैसे पे नहीं रहा, मैं अपना स्ट्रगल करा। एक होटल थी मेरे ग्रैंडफादर की, मैं होटल लिया, लेके उनसे बोला भाई मैं पेरिस जाना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट हैपेंड। आई केम बैक रिटर्न फ्रॉम द पेरिस, I was not settled on there, so I thought that I want to go for the business. My father was ACP in the excise department. That immediately when the offer came for the job for me, my father has taken to me the collector, and on the slip collector has written and he's told her आप जाके वहाँ पर दे दीजिए, आपके बच्चे को कल से जॉब पे भेजाएंगे। So I was appointed as a lower typist there. But after that also I was not satisfied with that job. I want to do something different. So when I came back to Hyderabad, I was worked in Khammam 6 months. I came to Hyderabad back and I asked my grandfather, I want to take the hotel, I want to run the hotel. So immediately he has agreed. वो होटल मुझे दे दिए, मैं होटल वो चलाया। एक होटल थी वहाँ पर इंजन बोली चौरस्ते पे, इंजन बोली दरगाह के बाजू के होटल बाबा कैफे बोल से चलाया। छोटी होटल, टीन का शेड था। अगर आप सही बिलीव करिए ना करें, अगर कारीगर अगर नहीं आता, चाय बनाने वाला नहीं आता, डोसा बनाने वाला नहीं आता, पूरी बनाने वाला नहीं आता, तो मैं अंदर जाके पूरी बना के डोसा बना के फिर आके मैं अपने काउंटर पे बैठता था। मुझे ख्वाहिश थी कि मैं अपने आप से करूं। आज अल्लाह का करम ये है कि आज मेरे 3 स्कूल्स है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब मेरी अपनी मेहनत का है। मेरे पेरेंट्स बैकिंग करें, लेकिन मेरी अपनी मेहनत। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें कई रिक्शे वालों के बच्चे कई हैं IAS बने, IPS बने, ये सब अपने पे है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब अपन क्या हो रहा अपने आप देख ले सकते हैं, रात में सोते हैं अपन 2 बजे, सुबह कहाँ से उठेंगे। अब मैं देख के खुशी हुई कि सुबह मेरा फंक्शन हॉल का शटर जो है सुबह 5 बजे फजर के बाद शटर खुल जाएगा। आपके लिए और मुझे उम्मीद है आगे आप लोग इंशाल्लाह अपने माँ बाप का, अपने देश का, हर एक का जो है नाम रोशन करेंगे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उसामा साहब का। You know, great persons are like that. You understand? They will tell what exactly. वो कभी चढ़ा उड़ा के नहीं बताएंगे। तो आप समझ सकते हैं आबिद साहब की स्टोरी को जो बताएं। उनका मकसद ये है कि आप लोग चाहे तो तारीफ व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू आबिद साहब। अब हमारे उसाम साहब मेरे फेलिसिटेट करेंगे आबिद साहब को। साहब से गुजारिश करता हूँ कि फेलिसिटेट करें किरण सर।
हम हालांकि हम क्लासेस कनेक्ट करने के बाद इससे मुलाकात हुई। ओके, तो दैट ग्रेट पर्सनैलिटी आपके यहाँ पे आना, इस प्रोग्राम की आपने रौनक बढ़ाई, उसके लिए मैं तहे दिल से फिर से एक बार आबिद साहब का शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आबिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो 3 महीने जो हमने कोचिंग दी, जो बच्चे जल्दी जो प्रॉब्लम सॉल्व करे थे सर, उनको कुछ सिलेक्टेड बच्चों को हमने फ्री किताबें दी, तो उनसे गुजारिश करता हूँ उनके हाथों से जो वैसे तो बाकी किताबों को तकसीम करें। अजहर मुस्कान, आप क्योंकि आपके नंबर्स हैं मेरे पास, मैं आपको कॉल करके बुला के दूंगा। इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हो खुदा खामी उसको मिटा सकता है कौन? आबिद भाई का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आपने फर्स्ट टाइम हम लोग कई फंक्शन हॉल ढूंढ रहे थे, मगर कोई फंक्शन हॉल वाले नहीं बोल रहे थे हमारे पास शादियां रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स के शादियां रहते हैं, मगर आबिद भाई मेरे एक कॉल के ऊपर अच्छी बात है सर बोल के बोले। मैं दिल की गहराइयों से मैं आबिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये आज एक बीज हुआ है सर, ये पौधा बनेगा, ये फल देगा, ये यहाँ के जो बच्चे कम्युनिटी के बच्चे जो आज IPS, IAS, IAS और सिविल सर्विसेज और ग्रुप 4 के और कांस्टेबल के लिए SI के लिए जा रहे हैं सर, ये आपकी बदौलत रहेंगे, ये आपका एहसान है जो आपने एक शेल्टर दिया, एक जगह दी, तो ये बच्चे आज के आपने 3 महीने की ट्रेनिंग आज कंप्लीट कर सके। और मैं आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आबिद भाई का भी शुक्रिया अदा करें, जो हुसाम सर, ख्वाजा सर, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस आबिद भाई का भी है, जो आप यहाँ पे जगह देने से आज ये कम्युनिटी के बच्चे आज 3 मंथ्स की ट्रेनिंग यहाँ पर फ्री लिए। हम लोग आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लिए, बुक्स भी पूरे फ्री दे रहे हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बने और आप अच्छा एक इंडिया का नाम रोशन करें, कंट्री का नाम रोशन करें, अपने उस्तादों का नाम रोशन करें और आप भी गिवर देने वाले बने, कभी लेने वाले ना बने, देने वाले बने, देते जाए। अल्लाह ताला देने वालों को पसंद करता है, ऊपर का हाथ अल्लाह ताला को पसंद है, नीचे का हाथ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कभी नीचे का हाथ मत बनिए आप लोग, ऊपर का हाथ बनिए, अल्लाह ताला आप लोगों को और देने वाला बना देगा। तो मैं आबिद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे लिए आपने ये इस कम्युनिटी के लिए, जो इस जज्बात के लिए जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग के लिए आपने जो सपोर्ट किया है, मैं आबिद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारे लिए इतने बच्चों के लिए यहाँ पे रास्ते खोले हैं। मैं फिर भी आबिद भाई और आबिद भाई की जो टीम यहाँ पे मैनेजमेंट है, डायरेक्टर साहब है, अभी आबिद भाई के बेटे फरजान आए थे, इब्राहिम और प्रिंसिपल डायरेक्टर भी आए थे, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नॉट ओनली फॉर ख्वाजा सर, नॉट ओनली फॉर हुसाम सर, ये प्रोग्रेस के मैनेजमेंट भी इस टीम में शामिल है। मैं थैंक यू और जज़ाकल्लाह अदा करता हूँ। ये एक शेर वो जो मैं लास्ट में शेर पढ़ा था, मुश्किल पड़ी तो क्या, मुश्किल पड़ी तो क्या, मुश्किल कोशा तो है, सामने दुश्मन खड़ा तो क्या, सर पे खुदा तो है।